سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے ایلچن خاتون کی حاضر دماغی دیکھی، جس کے مطابق وہ مشکل وقت میں بھی بڑا اچھا فیصلہ کرتی ہیں، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات امام ابو حامد محمد الغزالی سے ہوتی ہے، جو کہ نظامیہ مدرسے میں باطنیوں کی لائی جانے والی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی دوران یالمن شہید کا بیٹا سلجوق اپنے استاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، جناب آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ آپ کو کس نے اداس کیا ہے؟ آج صبح میں نے سیاہی گرا دی تھی، کیا آپ اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ غزالی کہتے ہیں، نہیں تو میں تمہاری وجہ سے کیوں ناراض ہوں گا؟ میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہمارے درمیان رہنا چاہیے۔ ننھا سلجوق کہتا ہے، بتائیں مجھے وہ کیا ہے؟ جبکہ غزالی پھر سلجوق کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، جب میں بچہ تھا تو میں نے بہت سیاہی گرائی تھی، لیکن آج جو کچھ میں لکھتا ہوں وہ شفا بخش الفاظ بن جاتے ہیں، اور وہ الفاظ ان کتابوں کی شکل میں ہیں۔ اصل ہنر اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے۔ سلجوق کہتا ہے، تو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس نے آپ کو اداس کیا ہے؟ غزالی کہتے ہیں، اب تم نے صحیح اندازہ لگایا ہے۔ سلجوق کہتا ہے، لیکن کتابوں سے تو خوشی ملتی ہے نا؟ غزالی کہتے ہیں، ہر لکھی ہوئی کتاب شفا بخش نہیں ہوتی۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری شفا بخش اور زہریلی کتابوں میں فرق کرنا ہے۔ سلجوق کہتا ہے، تو پھر آپ انہیں مت پڑھیں، آپ بھی زہر کا شکار ہو جائیں گے۔ غزالی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، تم فکر نہ کرو، ہمیں زہر کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کا علاج تلاش کر سکیں۔ ہر چیز اپنے متضاد کے ساتھ موجود ہے۔ جس طرح دن کو جاننے کے لیے رات کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح صحیح چیز لکھنے کے لیے آپ کو غلط چیز جاننے کی ضرورت ہے۔ ادھر دیکھو، میں تمہیں یہ مسئلہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ تصور کرو کہ یہ سونے کی تھیلی ہے۔ غزالی ایک تھیلی آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن اس میں موجود سونے کے سکوں میں جعلی سونے کے سکے بھی شامل ہیں۔ اس صورتحال میں اس تھیلی میں موجود سونے کے اصل اور نقل سکوں میں فرق کون کر سکتا ہے؟ سلجوق کہتا ہے، سونار۔ غزالی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، بالکل، جس طرح جعلی اور اصلی سونے کے سکوں میں فرق کرنے کے لیے آپ کو سونار کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح صحیح کو غلط سے الگ کرنے کے لیے آپ کو صاحب علم ہونا لازمی ہے۔ سلجوق مسکراتا ہے اور کہتا ہے، پھر تو مجھے بھی پڑھائیں جناب، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ غزالی کہتے ہیں، صبر ننھے جناب، صاحب علم ہونے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک شخص جو خود کو نہیں جانتا تو پھر چاہے وہ کتابوں کے پہاڑ بھی پڑھ لے، اسے ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم سب سے پہلے یہ جانو گے کہ تم کون ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہو، اور اس کے بعد علم کے دروازے تمہارے لیے خود بخود کھل جائیں گے۔ سلجوق مسکراتا ہے، اور پھر دوستو دوسری جانب امیر التبر دکھائے جاتے ہیں، جو کہ سلطان ملک شاہ کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نے باطنیوں کے علاقے میں چھان بین کی ہے، جیسا کہ آپ کا حکم تھا، میں نے ان کے نقصان دہ ارادوں کا پتہ لگا لیا ہے۔ سلطان ملک شاہ پھر کہتے ہیں، آج کے بعد سلجوق کی سرزمینوں میں باطنیوں کا ہونا ممنوع ہے، جلد سے جلد ان کا علاقہ خالی کرواؤ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی لوگوں میں چھپنے کی کوشش کرے تو انہیں سزا دو۔ امیر التبر کہتے ہیں، میرے سلطان، آپ کے حضور پیش ہونے کی اصل وجہ میری بیٹی تورنا ہے۔ ایک تاجر جس کا نام میخائل ہے، اس نے اسے کینک قبیلے سے اغوا کر لیا ہے اور سنجر اس کے پیچھے گیا ہے۔ سلطان اس دوران حاجی نظام الملک کی جانب دیکھتے ہیں، اور پھر حاجی نظام الملک اپنا سر ہلا کر سلطان کو اشارہ کرتے ہیں، جبکہ امیر التبر کہتا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فرمان جاری کریں میرے سلطان، مجھے فرمان دیں تاکہ میں اپنی بچی کے لیے کوول قلعے پر حملہ کر سکوں۔ سلطان یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، جبکہ حاجی نظام الملک کہتے ہیں، میرے سلطان، میں نے آپ کے حکم کے مطابق تاجر میخائل کے بارے میں شاہبند
कमांडर दुकास से पूछा है। वो हमें जरूरी मालूमात फराहम करेगा और हमने अपनी तमाम सरहदें भी बंद कर दी हैं। सुल्तान फिर अमीर अल्तबर के पास आते हैं और कहते हैं, तुम भी अकल से काम लो अल्तबर। एक बाप की हैसियत से मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन अगर हम ये यकीन बनाए बगैर कोवल किले पर हमला करते हैं तो कसूरवार हम ही होंगे और बाजंतीन के साथ हमारा मुआहिदा भी टूट जाएगा, जबकि अनातोलिया अभी भी फसाद का शिकार है। हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि हम ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लें और इसीलिए मैं इसका हुक्मनामा नहीं दे रहा। अमीर अल्तबर हसरत के साथ कहता है, तो मेरी बेटी का क्या होगा मेरे सुल्तान? क्या मैं हाथ बांध कर इसका इंतजार करता रहूं? सुल्तान कहते हैं, उस आदमी के पास सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं है बल्कि मुकद्दस इमानतें भी मौजूद हैं। मैंने अपने बेटे तापार को इसकी तलाश के लिए भेजा है। तुम सब्र से मेरे पैगाम का इंतजार करो। तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी है, तुम फिक्र मत करो। अमीर अल्तबर अपना सर हम करता है और परेशानी के साथ हाजी के हमरा यहाँ से चला जाता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब कमांडर योरगोस दिखाया जाता है, जो कि तुरना खातून को पानी देता है, लेकिन तुरना खातून कहती हैं, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझसे दूर रहो। योरगोस कहता है, तुम मुझसे नाराज हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बस एक बार हम इन जमीनों से निकल जाएं तो मैं तुमसे बहुत अच्छे से पेश आऊंगा। चलो अब थोड़ा सा पानी पी लो, अपने आप को अजियत में मत डालो। तुरना खातून कहती हैं, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मेरे लिए अजियत ही है। अच्छा है कि मैं प्यास से ही मर जाऊं। इसी दौरान जैनून सिपाही आता है और योरगोस से कहता है, कोवेल से खबर आई है योरगोस, सल्जूक ने अपनी और किले की सरहदों को बंद कर दिया है। कमांडर आंद्रेयास ने कहा है कि तुम किले वापस नहीं आना। योरगोस ये सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है, जबकि तुरना खातून मुस्कुराती हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ सल्जूक मुहाफिज तुरना खातून की तलाश में यहीं पर पहुंच जाते हैं और इन्हें देखकर तुरना खातून फौरन चिल्लाती हैं और कहती हैं, मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे। जबकि योरगोस फौरन तुरना खातून के मुंह पर हाथ रख देता है, जबकि सामने गश्त करने वाले सिपाही अपने एक साथी से कहते हैं, ये वही लड़की होगी जिसकी हमें तलाश है, चलो सिपाहियों। फिर दोस्तों सारे फौजी आगे बढ़ते हैं और योरगोस को घेर लेते हैं। एक सल्जूक सिपाही कहता है, हथियार डाल दो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। लेकिन योरगोस अपनी तलवार निकाल कर कहता है, हम भागेंगे, ये तुम्हें किसने कहा है? कमांडर योरगोस और सिपाही जैनून फौरन आगे बढ़ते हैं और सल्जूक सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि तुरना खातून ये देखकर बड़ी ही परेशान होती हैं। दोस्तों इधर सल्जूक सिपाही बड़ी ही बहादुरी से जैनून और योरगोस का मुकाबला करते हैं और इन्हें एक मर्तबा घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। जबकि दूसरे हमले में योरगोस एक सिपाही को शहीद कर देता है, लेकिन ज्यादा फौजियों की वजह से सल्जूक मुहाफिज योरगोस को और जैनून को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर कमांडर योरगोस अपने बूट में से एक हंजर निकाल कर मुहाफिज के पाँव में मारता है और इसी हंजर से दूसरे मुहाफिज को चीर फाड़ देता है, जिसकी वजह से सल्जूक सिपाही कमजोर पड़ जाते हैं। और ये देखकर तुरना खातून फौरन अपने हाथ पाँव खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी जानब कमांडर योरगोस और जैनून सिपाही चारों सल्जूक फौजियों को शहीद कर देते हैं। और ये देखकर तुरना खातून की उम्मीद भी जवाब दे जाती है। फिर कमांडर योरगोस जैनून के हमरा तुरना खातून के पास आता है और अपनी खून से सुर्ख हुई तलवार आगे करता है, जबकि तुरना खातून फिर कहती हैं, तुम्हें जल्द ही घेर लिया जाएगा, बहुत जल्द सांजार तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम्हें उससे कोई भी नहीं बचा सकेगा। योरगोस गरूर में कहता है, वो ये समझते हैं कि मैं कुस्तुनतुनिया जा रहा हूँ, वो सब रास्तों पर हमारे मुंतजर होंगे। तुम ठीक कहती हो, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। जैनून ये सुनकर मुस्कुराता है, जबकि तुरना खातून बड़ी परेशान होती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल में सुल्तान मलिक शाह दिखाई देते हैं, जिनके पास हाजब कमच आते हैं और कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम खलीफा मुक्तदी हजरत का एलची आया है, वो आपके लिए एक खत भी लाया है। सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, इसे अंदर आने दो।
हाजब कमच एलची को लेने के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह अपने तख्त पर आते हैं। जबकि इतने में एलची हाजब कमच के हमरा सुल्तान मलिक शाह के हजूर पहुंच जाता है और रवायती अंदाज में सुल्तान को एलची सलाम कहता है और फिर ये एलची एक मकतूब सुल्तान को पेश करता है और साथ में कहता है, आलमे इस्लाम के खलीफा मुक्तदी हजरत की तरफ से इस्लाम की फौज के सरदार सुल्तान मलिक शाह के नाम। सुल्तान फिर कहते हैं, कमच इस खत को पढ़ो। हाजब कमच फिर एलची से हाथ लेते हैं और इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें लिखा होता है, मजलूमों के लिए रहम दिल और अपने रौब से जालिमों के दिलों में डर पैदा करने वाले सुल्तान मलिक शाह आलमे इस्लाम के परचम के मुहाफिज और सल्जूक रियासत के लिए दुआगो हैं। हमने सुना है कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और अम्मी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मुकद्दस इमानतें फितना और बदउनवानी फैलाने वालों के हाथ लग गई हैं। इस सानहे ने हमें और इस्लामी दुनिया के मोमिनीन को गमगीन कर दिया है, लेकिन हमारी उम्मीदें आप पर मुनहसर हैं। तमाम शिकस्ता दिल जल्द से जल्द आपकी तरफ से खुशखबरी के मुंतजर हैं। अल्लाह अज़्वजल आपकी तलवार को तेज करे और आपकी ताकत को बेमिसाल रखे और आपकी उम्र में बरकत डाले। फिर सुल्तान मलिक शाह हाजब कमच से ये खत लेते हैं और इसे खोलकर एक नजर खुद देखते हैं और फिर कहते हैं, कमच एलची एक दिन के लिए हमारा मोअज़्ज़िज़ मेहमान है, इसके बाद ये अपने रास्ते पर रवाना हो जाएगा। एलची सुल्तान के हुक्म पर सर खम करता है और हाजब कमच के हमरा फिर यहाँ से चला जाता है। जबकि फिर दोस्तों सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, मुकद्दस इमानतों के बगैर गुजारा हुआ हर लम्हा हमारे लिए अजाब है। फिर दोस्तों इस्फहान में सिपाही सांजार और इसके साथी दिखाए जाते हैं, जो कि शाहबंदर दुकास की रिहाइश गाह के नजदीक आकर एक मंसूबा बनाते हैं। सांजार कहता है, घर के सामने 6 और छत पर 2 अफराद मौजूद हैं, तुम सब जानते हो कि क्या करना है। चलो फिर दोस्तों सारे हसूसी सिपाही अपने निकाब लेते हैं और अपने अपने फर्ज की तरफ रवाना हो जाते हैं। आई दो सिपाही घर की छत पर चढ़ता है, जबकि बालाबन और अयाज घर के बाहर मौजूद पहरेदार मुहाफिजों को घेर लेते हैं और अरसलान ताश दीवार के पास खड़े फौजियों को मार गिराता है। इतने में छत पर से आई दो भी मुहाफिजों को मार गिराता है, जबकि बाकी बच जाने वाले 2 मुहाफिजों को सांजार और अरसलान ताश खुद देखते हैं और इन्हें बेहोश कर देते हैं। और फिर दोस्तों देखते ही देखते सारे सिपाही गिर जाते हैं और सारे सिपाहियों को बेहोश कर देने के बाद इशारा मिलने पर सांजार अपना निकाब उतारता है और कहता है, बोसकोश तुम बाहर इंतजार करोगे और पहरा दोगे, अरसलान ताश तुम मेरे साथ आओगे। सिपाही फौरन फिर घर के अंदर दाखिल होते हैं और अंदर से 2 मजीद सिपाही फौरन मज़ाहमत करके सांजार का मुकाबला करने आ जाते हैं, लेकिन सांजार और अरसलान ताश इन्हें भी गिरा देते हैं। फिर दोस्तों सांजार अरसलान ताश को एक जानब भेजता है और खुद घर की छत की तरफ चलता है। सांजार घर की छत पर आता है, जहां शाहबंदर दुकास खिड़की से बाहर छलांग लगाने ही लगता है, लेकिन सांजार ऐन मौके पर इसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, हमने तो अभी बात भी नहीं की दुकास। इतने में दोस्तों दुकास का बेटा आवाज लगाता है और सांजार फौरन फिर दुकास को गले लगा लेता है ताकि बच्चा डरे नहीं। इतने में बच्चा अपने कमरे से बाहर आता है और सिपाही सांजार कहता है, मैं तुम्हारे बाबा का दोस्त हूँ, मैं इनसे बातचीत करने आया हूँ। दुकास अपना सर हिलाता है और बच्चा ये देखकर मुतमईन हो जाता है। फिर दोस्तों सांजार दुकास के बेटे से कहता है, तुम जाकर सो जाओ बेटा। फिर दोस्तों दुकास भी मुस्कुराता हुआ अपने बेटे को तसल्ली देता है और कहता है, जाओ बेटा सो जाओ। दुकास का बेटा फिर मुतमईन होकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन इसके जाने के बाद फौरन सांजार दुकास को एक जोरदार मुक्का पेट में मारता है और कहता है, तुम अपने बेटे को पीछे छोड़कर भागने वाले थे, तुम एक बुज़दिल इंसान हो, अब मुझे बताओ मिखाइल कहाँ है। दुकास कहता है, मुझे
नहीं पता। सांजार कहता है, तुम्हारा मुंह खोलने का तरीका मुझे मालूम है। सांजार अपना खंजर निकाल कर दुकास के हाथ पर मौजूद जख्म में दंसा देता है और दुकास चिल्लाने लगता है। सिपाही सांजार कहता है, क्या कुछ याद आया तुम्हें? सांजार दुकास के मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, बताओ क्या तुम्हें याद आया कुछ? दुकास अपना मुंह हिलाता है और कहता है, हाँ, जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था तो वो मशरक की तरफ जा रहा था। दुकास दर्द से चिल्लाता जाता है, जबकि सांजार कहता है, मुझे ये जानना है कि वो इस वक्त कहाँ है। सांजार फिर मजीद दुकास के जख्म में खंजर घुसेड़ता है और इसे घुमाता है और दुकास चिल्लाता हुआ कहता है, वो जंगल में है, गोकनार जंगल में, नाहमवार चट्टानों के पास। सांजार फिर खंजर वापस म्यान में रखता है और कहता है, मैं वहाँ जाऊंगा जहाँ तुम कह रहे हो, लेकिन तुम भी मेरे साथ जाओगे। इतने में दोस्तों अरसलान ताश भी ऊपर छत पर पहुँच जाता है, जबकि सांजार अरसलान से कहता है, मैंने पता लगा लिया है कि वो कहाँ है, हमें फौरी तौर पर यहाँ से रवाना होना होगा। चलो हम सुबह होने से पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर दोस्तों सिपाही सांजार दुकास को आगे चलाकर और खुद इसके पीछे पीछे यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल में सुल्तान मलिक शाह नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते हैं और नमाज मुकम्मल कर लेने के बाद सुल्तान मलिक शाह दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे रब, हकीकी कुव्वत सिर्फ आपकी ही है। हम तो एक ऐसी बरादरी हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है और आपने हमें एक आलमी रियासत बनाया है। आपका शुक्रिया, आपने हमें आलमे इस्लाम के झंडे की क़यादत करने का शरफ बख्शा है। हमारा मकसद सिर्फ फतह का नहीं है बल्कि आलमे इस्लाम की इज्जत और इसकी मुकद्दस जान का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। ऐ मेरे रब, हमें शर्मिंदा ना करना, हमें अम्मी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इमानतें जल्द से जल्द वापस लेना नसीब कर। कोई ऐसा दिन नहीं कि जब अंदरूनी या बैरूनी तौर पर गद्दारी ना हुई हो। हमें फतह, हमें सही और गलत में फर्क करने की बसीरत दे। हम सिर्फ तेरी रजा के लिए इस रास्ते पर निकले हैं, हमें ताकत दे। सुल्तान आमीन कहकर अपनी दुआ मुकम्मल करते हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब हसन सब्बाह दिखाया जाता है, जिनके पास हाजी निजामुल मुल्क मौजूद होते हैं और वजीर आजम मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम हर चीज के बारे में ऐन वक्त पर जान जाते हो हसन। कोवल की तरफ जाने वाले हसूसी सिपाहियों के दस्ते के बारे में तुमने ऐन वक्त पर बताया था। फसाद फैलाने वालों का भी तुमने हमें सही वक्त पर बताया था। माशाअल्लाह, इस कदर जहानत के पीछे सिर्फ जाफरान का पानी नहीं हो सकता। हमें भी ये राज बताओ ताकि हम भी तुम्हारी तरह सब कुछ पहले से ही देख सकें और इसके मुताबिक अमल कर सकें। हसन सब्बाह मुस्कुराता है और कहता है, जैसा कि मैंने सुल्तान मौज़म को बताया है कि ये सब हमारी रियासत से हासिल होने वाले तजुर्बे की बदौलत है हाजी हजरत। निजामुल मुल्क कहते हैं, इस रियासत ने मुझे भी 40 साल का तजुर्बा दिया है, लेकिन बाज चीजों को मैं भी ऐसे नहीं देख सकता जैसे तुम देखते हो हसन। ये सिर्फ रियासत की वजह से नहीं हो सकता। हसन सब्बाह बनने के लिए कुछ खास तो जरूर होगा। हसन सब्बाह कहता है, आप रियासत की चोटियों पर हैं और हम सिर्फ इसकी ढलवान पर हैं हाजी हजरत। आपका काम बाजों के साथ लड़ना है और चींटियों की तरह छोटी तफसीलात को देखना यकीनन हमारा फर्ज है। हाजी कहते हैं, या फिर ऐसा कहना चाहिए, निजामुल मुल्क पहले ही चोटियों पर पहुंच गया है जहां वो जाना चाहता था और हसन सब्बाह को वहां पहुंचने के लिए अभी बहुत रास्ता तय करना है और यही वजह है कि इसकी आंखें ज्यादा वाज़ेह तौर पर देखती हैं। हसन कहता है, हाजी हजरत, हमारे ऊपर उड़ने वाले बाज ही हमें बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। अगर वो चाहें तो हमें अपने पंजों से पकड़कर बुलंदियों तक ले जाएंगे या फिर वहां से छोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम ये अच्छी तरह जानते हैं, आप फिक्र मत करें। फिर दोस्तों हाजी हजरत हैरानगी से कहते हैं, कोवल किले में मिट्टी के तेल का एक जहीरा भी है, ऐसा तुमने लिखा है। ये मालूमात किसी और एलची को नहीं दी गई, ये हमारी खुफिया मालूमात में से हैं। क्या कोवल किले के मुतल्लिक मालूमात फराहम करने वाला हमारे सिवा भी कोई और है? हसन
ہسن کہتا ہے قسطنطنیہ میں موجود ہمارے جاسوسوں کی طرف سے بھیجی گئی معلومات کو میں بھی دیکھتا ہوں حاجی حضرت۔ پچھلے سال کوول قلعے میں بحری جہاز کے ذریعے مٹی کا تیل بھیجا گیا تھا، میرے خیال میں انہوں نے اسے محل کے تہہ خانوں میں چھپا رکھا ہے۔ حاجی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھے، سلامتی سے واپس آؤ حسن۔ حاجی ایک ہاتھ حسن کو تھما دیتے ہیں اور چالاک حسن صباح یہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن حاجی اس بات پر بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اسی دوران حاجی کا ایک خاص آدمی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے نظام الملک حضرت، دکاس کو اس کے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اغوا کرنے والا سانجار تھا۔ حاجی نظام الملک یہ سن کر دھنگ رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آہ سانجار آہ، یہ تم نے کیا کر دیا ہے، جلدی سے ڈھونڈو اسے، فوری طور پر جاؤ اور ڈھونڈو، جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن اسے ضرور واپس لے کر آؤ، جلدی جاؤ۔ دوستو، سپاہی اپنے فرض کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور حاجی نظام الملک کی اسی پریشانی کے ساتھ ہماری آج کی اس قسط کا